پہلے متوالے اور کھلاڑی، اب جیالوں کی باری۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ 3 روزہ راہداری ریمانڈ منظور، کراچی روانہ کر دیا گیا۔ کراچی میں آغا سراج درانی کے گھر پر چھاپا، بہو اور بیٹی سے کراچی، حیدرآباد، شکارپور اور سکھر میں جائیدادوں کے حوالے سے پوچھ گچھ، اہم فائلز ضبط، لیپ ٹاپ کی چیکنگ، اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر شہلا رضا کا دھرنا۔ گھیرا تنگ ہو نہیں سکتا، آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں گرفتار کرنا ہے؟ ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ۔ ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے بیدار قرار دیتے۔ آغا سراج درانی کی گرفتاری جمہوریت کو چیلنج، کراچی کی بجائے اسلام آباد سے کیوں پکڑا گیا؟ آصف زرداری کا سوال، جیلوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، نیب قانون میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے، حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، مقدمات کا سامنا کریں گے، حکومت کو 8-9 ماہ دے دیے، سابق صدر کا ان ہاؤس تبدیلی پر بھی غور کا اشارہ۔ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں اسپیکر پارٹی کی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے؟ دیکھا جا سکتا ہے، کیسز کا سامنا کرے گی، ڈیل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم نے پہلے کی ہے، وائڈ اینڈ رول ضرور ہے۔ احتساب سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، گرفتاریوں پر اپوزیشن کو سسٹم یاد آ جاتا ہے، کوئی سمجھوتا ہوگا نہ کسی کو آڑے آنے دیں گے، وزیر اعظم نے 2 ٹوک بتا دیا۔ سعودی ولی عہد کا دورہ کامیاب رہا، پاکستان معاشی بحران سے نکل رہا ہے، جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب۔ وفاقی عقائد کے اسپیکر پر حملہ ناقابل قبول، بے نامی وزیر اعظم کو آمریت قائم نہیں کرنے دیں گے، بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ سیاسی انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، بے نامی اکاؤنٹس کیس اچانک کیوں اٹھایا گیا؟ الیکشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی پریس کانفرنس۔ پلوامہ حملے کے بعد الزام تراشی اور دھمکیاں، سیاسی قیادت ایک ہو گئی، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور، بھارتی الزامات مسترد، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، کسی بھی جارحیت پر پاکستان دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، قرارداد کا متن۔ الزامات کا شور، مودی سرکار کا امن تباہ کرنے پر زور، معاملہ امریکہ تک پہنچ گیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد بہت سی رپورٹس ملی ہیں، صورتحال خوفناک ہے، پاکستان اور بھارت مل بیٹھ کر مسائل حل کریں، امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ اقوام متحدہ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تیار، پاکستان نے پلوامہ حملے کے بعد بھارتی دھمکیوں سے آگاہ کر دیا، ملیحہ لودھی کی سیکرٹری جنرل اور صدر سے ملاقاتیں، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، مستقل مندوب کی گفتگو۔ اگریشن ہو تو پاکستان میں بھی لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، فوج کو یا تو آپ جانتے نہ ہو، پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال پاکستان کو کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ کشمیریوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں اس پر شدید تشویش ہے۔ زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنے آرگیومنٹس وہاں پر پیش کیے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ بھارت سے کوئی جارحیت ہوئی تو پاکستانیوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، پوری دنیا پاک فوج کو جانتی ہے، کیا بھارت نہیں جانتا؟ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فواد چودھری کی پریس کانفرنس، وزیر اطلاعات کلبھوشن کیس جیتنے کے لیے پر امید۔ Today we signed MOUs. We believe it's the amount of that kind of investment is $20 billion. سعودی عرب نے پاکستان کو اربوں ڈالرز دیے، ہمیں 1% نہیں ملا، بھارتی انتہا پسندوں کا واویلا، سعودی ولی عہد کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بھارتی کوشش ناکام، محمد بن سلمان کے دورے کا مشترکہ اعلامیہ آتے ہی صفحے ماتم، متعصب میڈیا بھی رو پڑا، پاکستان کا نام نہ لینے پر۔ بھارت کے منہ پر ایک اور تماچا، جب ثبوت ہی نہیں ہیں تو پاکستان کی مذمت کیسے کریں؟ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، سعودی وزیر خارجہ کا ٹی وی انٹرویو۔
भारत में इंतहा पसंदी और पाकिस्तान दुश्मनी उरूज पर। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी शाकिर को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के वक्त हुकाम कहां थे, जेल के अंदर पत्थर कैसे आए? जेल इंतजामिया की मिली भगत वाज़े। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मालूमात भी नहीं दी गई। शर्मनाक हरकतें करने वालों को लफ्ज शर्मनाक पर एतराज। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत। भारतीय वकील की फिर आए बाएं शाएं। हरीश साल्वे पाकिस्तानी दलाइल का जवाब देने के बजाय लफ्जों पर एतराज करते रहे। जंगी जुनून से तिजारत का खून। मोदी की इंतखाबी मुहिम के लिए कशीदगी का सहारा। भारत में कारोबार का सत्यानाश। वाघा बॉर्डर से तिजारत बंद। सैकड़ों ट्रक सरहद पर रुक गए। जिप्सम भेजने वाले कारोबारी अफराद मुतमईन। माल वतन में फरोख्त होने का यकीन। ये मोदी साहब को ये नहीं पता कि उसने ये फैसला करके अपने ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान किया है। हमारा तो ये खैर ये जिप्सम पड़ा है तो ये आज नहीं महीने में 20 दिन में चला जाएगा, लेकिन मोदी साहब को ये नहीं पता कि उसने अपनी एक आर्डर बंद करके इसकी फैक्ट्रियां चल रही थी वो सब बंद हो गई हैं। सीमेंट दी फैक्ट्रियां भी बंद होणगे, उन्हां दा मजदूरां दा बहुत नुकसान हो रहा वा। मजदूर जिहड़े ने उन्हां दे बेकार हो जाणगे। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय किसान फिर सड़कों पर। नासिक से लॉन्ग मार्च का आगाज। 50,000 से जायद मुजाहिरीन 27 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे। मदारी भारतीय मीडिया की एक और मकारी। पाकिस्तान को टमाटर की फराहमी बंद करने की बोंगियां। फसल में खुद कफील हैं। 3 साल से तिजारत बंद कर रखी है। ताजिर हक्का बक्का। मुल्क में कमी नहीं होगी, वजीर ज़राअत पंजाब का बयान। इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन आगे ना दौड़ाएं। 10 महीने के लिए हम जंग की पोजीशन में थे 2002 में। आप भागे पूरी फौज लेकर वापस। जो कुछ भी वो वहाँ कर रहे हैं वो कश्मीर के दुश्मनों के साथ कर रहे हैं और वो दुश्मन आप हैं। किसको मार रहे हो, किसको सजा दे रहे हो? कोई हम भूटान है? हम भूटान है कि आप चढ़ के मारना शुरू कर देंगे? पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए। हम आपको वो इतना ही मारेंगे जितना जैसा करगिल में किया था आपने। अपनी मर्जी से कश्मीर की सॉल्यूशन होगी जो वो चाहते हैं, वेदर इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान को मिलना चाहते हैं। इंडिया के कोई नहीं मिलना चाहता, ये मैं बता दूं। भारतीय सरकार और मीडिया शेख चिल्ली के ख्वाब देखना बंद कर दे। अपने वज़ीर आज़म को बता दो पाकिस्तान तरने वाला नहीं। कश्मीरी अवाम जालिम फौज के खिलाफ सीना सफर। मसला हल करो। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने चीखती चिल्लाती भारतीय नारी एंकर को खरी खरी सुना दी। ये जुल्म का निजाम है कि आप सारा बोझ डाल दें अवाम पे और पैसे वाले लोग टैक्स ही ना दें। टैक्स के पैसे पे किसी को हमने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, पाकिस्तान में इलाज करवाएं ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। किसी को अवाम के पैसे से बैरून मुल्क इलाज की इजाजत नहीं देंगे। बड़े टैक्स दहिंदगान असल VIP। 17 लाख पाकिस्तानी 21 करोड़ अवाम का बोझ नहीं उठा सकते। पैसे वालों को छोड़कर बोझ गरीबों पर डालना जुल्म। कौम ने खुद को तब्दील न किया तो मुल्क के हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। टैक्स की मौजूदा वसूली मुल्क चलाने के लिए नाकाफी। टैक्स दहिंदगान के लिए आसानी पैदा करना पहली तरजीह। टैक्स कवानीन उर्दू में करने की तजवीज़। FBR के सवालात रिश्ता देने वालों से भी ज्यादा। अरकान असेंबली को गाड़ियों से उतरता देख लें, मजीद मालूमात की जरूरत नहीं रहेगी। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी का इम्कान। तुर्क सदर और मलाइशियन वजीर आजम आइंदा माह आएंगे। तुर्की की CPEC में दिलचस्पी। दिफाई शोबे में ताउन समेत कई मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे न पिलाने पर कार्रवाइयां। लाहौर में TV एक्टर फवाद खान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर समेत कई शहरों में रिमझिम खुनकी बढ़ गई। सिलसिला रात गए भी जारी रहने का इम्कान।
अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयदा आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक। अहम खबर आपको देंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची में नैब हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके घर पर छापा मारा है। इस दौरान उनके अहले खाना से हैदराबाद, शिकारपुर और सक्खर में मौजूद जायदादों से मुतल्लिक पूछगछ की गई है। इस छापे के दौरान नैब हुकाम ने अहम फाइल्स भी अपने कब्जे में ले ली हैं। जी हां, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लैपटॉप और कमरे की चेकिंग भी की गई है। आगा सिराज दुरानी के वकील को घर के अंदर जाने से रोक दिया गया। वकील का इस मौके पर यह कहना था कि कानूनी तौर पर तलाशी के दौरान उनका मौजूद रहना उनका हक है। अरकान सिंध असेंबली इस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिराज दुरानी के घर पहुंच गए। टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान को सिराज दुरानी के घर दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। अशद, आगाह कीजिएगा, अभी छापा जारी है और तलाशी का अमल जारी है, खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, देखें, साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के ज़ेर सदारत जो है यहाँ पे तमाम तर अरकान सिंध असेंबली जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जिसमें निसार खोड़ो हैं, मुर्तज़ा बाब में उवैस कादिर शाह है, मुकेश कुमार है, इम्तियाज शाह है। इसके अलावा और भी दीगर जो है यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के अरकान है, उहदेदारान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी कोशिश है कि वो घर के अंदर जाएं और जो फैमिली है उनसे मिल सकें। जो पीपल्स पार्टी के अरकान है उनका ये कहना है कि जो घर में फैमिली है उनको जो है वो बाहर लाया जाए। घर में सिर्फ 5 खवातीन हैं, जबकि नैब की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। उन्होंने दोपहर से खाना भी नहीं खाया है, उनको बाहर लाया जाए, उनसे हमारी मुलाकात कराई जाए। लेकिन बाहर जो है यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है, पुलिस और रेंजर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि उनको किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनको उस तरह हवाले से ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। तो तमाम तर जो वज़रा हैं और इसके अलावा दीगर जो अरकान असेंबली है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनको उनकी फैमिली से, आगा सिराज दुरानी की फैमिली से नहीं मिलवाया जाएगा, उस वक्त तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असेंबली हैं वो स्पीकर आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद हैं। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अशद, शुक्रिया आपका। और अब पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला, जिस पर नईम उल हक और फवाद चौधरी आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात ने पीटीवी बोर्ड की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया। वज़ीर इत्तलात एमडी पीटीवी की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना यह है कि चेयरमैन के बगैर पीटीवी बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है और इस सिलसिले में उन्होंने एससीपी को बाकायदा तौर पे ख़त लिखा है, जिसमें कहा यह गया है कि बोर्ड के जो मौजूदा फैसले हैं वो गैर कानूनी हैं और इसकी इंक्वायरी की जाए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन से। खावर, दोनों का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, क्या वजह इख्तलाफात की? जी, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के जो इंतजामी मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं और अब दो जो काबीना के अरकान हैं, एक तरफ फाकी वजीर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब खड़े हैं, वो कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन का जो बोर्ड है, क्योंकि इस वक्त उसका चेयरमैन मौजूद नहीं है। और वजीर का कहना है, वजीर जो इत्तलात है उनका कहना है कि जो जितने भी फैसले मौजूदा बोर्ड ने किए हैं उनकी कानूनी हैसियत नहीं है और उन्होंने एससीपी को इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा है। दूसरी तरफ मुआमने हसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, नईम उल हक पुराने दोस्त भी हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि प्राइम मिनिस्टर को मौजूदा बोर्ड पे पूरा एतबार है और जितने भी फैसले वो कर रहा है वो ठीक है और हम पीटीवी को बीबीसी की लाइंस के ऊपर रिवैम्प करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन मौजूदा हालात जो नजर आ रहे हैं उस वक्त इसमें तो हमें यही दिख रहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन एक नेशनल एसेट है, वो दिन ब दिन जो गिरता जा रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और बाकी भी तमाम मामला। ठीक है, नताइज के लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। खबर घुमन, शुक्रिया आपका। पुलवामा हमले के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। कौमी असेंबली का इजलास हुआ, जहां पर भारतीय इल्जामात के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। इस करारदाद का मतन है जो आज कौमी असेंबली के अरकान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। जी हाँ, पुलवामा हमले के बाद भारत में एक तूफान बरपा है। इसी मकसद के लिए कौमी असेंबली में भारतीय इल्जामात के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद का मतन ये कहता है कि भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अगर किसी भी किस्म की मुहिम जुई हुई तो पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत आज ये इजलास हुआ, जहां पर यह करारदाद पेश की गई और असेंबली के तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर इस करारदाद की हिमायत की है और भारत के इन झूठे बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी को अवाम के पैसे से बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत इजाज़त नहीं देंगे। बड़े टैक्स दहिंदगान असल VIP हैं। ये 17 लाख पाकिस्तानी
21 करोड़ आवाम का बोझ नहीं उठा सकते। उनका ये भी कहना था कि कौम को एतमाद देकर 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स पेयर से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पैसे वालों को छोड़कर बोझ गरीबों पर डालना जुल्म है। कौम ने खुद को अगर तब्दील न किया तो मुल्क के हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान जिधर आज खड़ा है, जिधर आज हम पहुंच गए हैं, हमने अगर अपने आप को चेंज ना किया तो आगे हमारे हालात और मजीद मुश्किल होते जाएंगे। 17 लाख फाइलर्स 21 करोड़ लोगों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम सारा बोझ डाल देते हैं उन लोगों पे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जुल्म का निजाम है कि आप सारा बोझ डाल दें अवाम पे और पैसे वाले लोग टैक्स ही ना दें। टैक्स के पैसे पे किसी को हमने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, पाकिस्तान में इलाज करवाएं ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। इसहाक डार वो बाहर इलाज करवाने जा रहा है, शरीफों के खानदान उनका 28 करोड़ रुपए का बाहर इलाज हो रहा है। आज शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं इलाज करवाने, उधर नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इलाज ही नहीं करवाएंगे, या जेल में जाएंगे या बाहर इलाज करवाने जाएंगे। हमने एक टैक्स पेयर को पहले एश्योर करना है कि आपका पैसा अवाम पे खर्च होगा। टैक्स पेयर का पैसा हमारी आशियाओं के लिए नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव केस की समाअत जारी है। भारत कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है। भारत कुलभूषण जाधव की रिटायरमेंट का सबूत देने में भी नाकाम हुआ। इसके अलावा भारत कुलभूषण के ईरान से अगवा किए जाने का सबूत भी नहीं दे सका। दी हेग में इस केस की समाअत जारी है, जहां पर पाकिस्तान के वकील खाबर कुरैशी ने गुज़श्ता रोज दलाइल दिए, जिसके बाद आज भारत के वकील ने जवाबुल जवाब में दलाइल दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के वकील खाबर कुरैशी इस तमाम तर समाअत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे अदालत के सामने, जिसके बाद आलमी अदालत इंसाफ मुमकिन तौर पर फैसला महफूज कर लेगी और इसमें कुछ वक्त लगेगा। यह अहम मामला है। पाकिस्तान की हिरासत में है भारत का ये जासूस कुलभूषण यादव, जिसको बलूचिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया, और ये भारत का हाजिर सर्विस ऑफिसर है जिसका वो एतराफ़ कर चुका है। लेकिन अगर कोई एतराफ़ नहीं कर रहा तो वो उसका मुल्क है जिसको तस्लीम करने से अब इनकारी है। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.